ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ بابا پلیز مجھے ان سو کالڈ پارٹیز میں نہیں جانا۔ آپ کو پتا ہے کہ مجھے ذرا انٹرسٹ نہیں ہے۔ میری اپنی فرینڈز کے ساتھ پلانز ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی اس بارے میں انفارم کیا تھا۔ وہ جھنجھلائے ہوئے کہنے لگی۔ اکرام صاحب نے اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے پیار بھرے انداز میں کہا، آئی نو میری بیٹی کو پارٹیز پسند نہیں ہے، بٹ بلیو می کہ یہ ان سو کالڈ پارٹیز کی طرح ہرگز بھی نہیں۔ آئی ایم شیور کہ تم بہت انجوائے کرو گی۔ تمہارے انکل فاروق بھی تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ بابا جان آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ۔ صفا بیٹا بری بات ہے، بڑوں کے بارے میں اس طرح سے بات نہیں کرتے۔ بٹ بابا مجھے ان کی فیملی اچھی نہیں لگتی، اسپیشلی ان کا وہ پاگل اور سنکی بیٹا۔ بابا جب بھی میں اس کو دیکھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے میرے دماغ میں لاوا ابلنے لگا ہے۔ آئی ریئلی ہیٹ ہم۔ وہ تو تمہارا یونیورسٹی فیلو ہے۔ مجھے کبھی موقع نہیں ملا کہ میں تم سے اس کے بارے میں پوچھوں۔ بابا آپ نہ ہی سوال کریں تو بہتر ہے۔ ہی از سو ایروگینٹ، پتہ نہیں خود کو سمجھتا کیا ہے۔ میں نے بہت سے اسٹوڈنٹ سے یہ بات سنی ہے کہ وہ سب کو اپنی جوتی کی نوک پر رکھتا ہے، اور اگر میرے لینس سے دیکھا جائے تو مجھے نہیں لگتا اس میں کوئی ایسی خاص بات ہے جو اس کو اس قدر مغرور ہونا چاہیے۔ تو بیٹا آپ اس کو سمجھاتی کیوں نہیں؟ وہ شرارتی انداز میں اپنی بیٹی کی طرف دیکھتے بولے۔ آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ۔ میں اسے دیکھتی ہوں تو میرا موڈ آف ہو جاتا ہے۔ ارے اتنی نفرت؟ انہوں نے حیرت کا مظاہرہ کرتے کہا۔ مجھے اس سے نفرت نہیں، مجھے بس اس کی ذات میں کوئی دلچسپی نہیں۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے اپنے موبائل کی طرف متوجہ ہو گئی۔ بابا کیا میں مریم کے گھر جا سکتی ہوں؟ آپ کو بتایا تھا کہ اس کی ماما گھر پر نہیں ہے، تو وہ کہہ رہی تھی میں آج رات اس کے گھر پر ٹھہر جاؤں۔ بیٹا تمہیں پتا ہے نا یہ چیز مجھے بہت بری لگتی ہے۔ تم پورا دن ان لڑکیوں کے ساتھ گھومتی رہو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کم از کم رات کو۔ بابا مجھے پتا ہے، اینڈ آئی ایم ریئلی سوری۔ آپ بالکل فکر مت کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ ان کی حویلی کتنی سیکیور ہے، وہاں پر گارڈز بھی موجود ہیں۔ گارڈز کی اجازت کے بغیر کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا۔ ٹھیک ہے چلی جاؤ۔ انہوں نے اسے اجازت دے دی تو وہ خوشی سے اپنے بابا کے گلے لگتے ہوئے کہنے لگی، آپ ورلڈ بیسٹ پاپا ہیں۔ صبح میں جلدی واپس آ جاؤں گی، پھر ہم دونوں اکٹھے ناشتہ کریں گے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے کی طرف بھاگی تھی، اپنا تھوڑا سا سامان لیا اور حویلی سے باہر نکل گئی۔ کچھ دن پہلے ہی اس نے ڈرائیونگ سیکھی تھی اور اب وہ خود ہی کار ڈرائیو کر رہی تھی۔ سڑک کے بیچوں بیچ گاڑی جھٹکے سے رک گئی۔ اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ ڈیم اٹ، اس کو ابھی خراب ہونا تھا۔ سردیوں کا موسم تھا، جلد ہی اندھیرا پھیل جاتا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں مغرب کی اذانیں بھی ہونے والی تھی۔ اس ویران سڑک میں وہ بالکل اکیلی کھڑی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے موبائل نکالا۔ اس کی بدقسمتی کے وہاں سگنلز بھی نہیں آ رہے تھے۔ اب اسے گاڑی میں ہی بیٹھ کر کسی کے آنے کا انتظار کرنا تھا۔ 15 منٹ گزرے ہی تھے کہ ایک بلیک رنگ کی پراڈو اس کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی، لیکن گاڑی سے نکلنے والے شخص کو دیکھ کر اس کو اپنا حلق تک کڑوا ہوتا محسوس ہوا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ زیان خان تھا۔ 6 فٹ سے نکلتا ہوا قد، چوڑے شانے، مضبوط جسامت، ماتھے پر پڑے ہوئے بل اور آنکھوں پر سن گلاسز۔ کبھی کبھار وہ حیران ہوتی تھی اور بعض اوقات اس کا مذاق بھی بناتی تھی کہ وہ پہلا عجیب و غریب انسان تھا جو رات کے وقت بھی سن گلاسز پہن کر گھومتا تھا۔ اس نے آج تک اس انسان کی آنکھوں میں نہیں دیکھا تھا اور اسے کوئی دلچسپی بھی نہیں تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی گاڑی سے باہر نکل آئی۔ ایکسکیوز می، مجھے آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہے۔ اس نے زیان کو اپنی جانب متوجہ کرنا چاہا، مگر وہ اس کی بات کا جواب دیے بغیر ہی اس کی گاڑی کے بونٹ کو اٹھا چکا تھا اور وہاں پر موجود تاروں کے ساتھ چھیڑخانی کرنے لگا۔ وہ اپنے کام میں اس حد تک مصروف تھا کہ اسے اپنے پہلو میں کھڑی صفا کا کوئی ہوش ہی نہیں تھا۔ اب جا کر گاڑی سٹارٹ کرو۔ صفا نے گاڑی سٹارٹ کی تو وہ سٹارٹ ہو گئی۔ پھر دیکھ کر زیان خاموشی سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ زن سے اپنی گاڑی بھگا کر لے جا چکا تھا۔ یا اللہ، یہ کس طرح کا پاگل سائیکو نفسیاتی انسان ہے۔ شکر ہے کہ میرا پہلے کبھی اس سے پالا نہیں پڑا۔ انسان میں ذرا سے
एथिक्स होते हैं, जरा मैनर्स होते हैं, मगर इसको देखकर यूं लगता है जैसे ये एथिक्स के करीब से भी नहीं गुजरा। इससे ज्यादा बदतमीज इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। मैं बाबा को इसकी हरकतों के बारे में बताऊंगी। वो दिल ही दिल में उसे गालियों से नवाज रही थी। फिर उसके दिमाग ने उसको याद दिलाया कि इसी इंसान ने इसकी मदद की थी। अगर वो शख्स इसकी मदद ना करता तो शायद अभी वो रात के इस पहर गाड़ी में ही मौजूद होती, या फिर सारी रात इसी जगह गुजार देती, क्योंकि मोहतरमा ने अपनी दोस्त के घर जाने के लिए एक शॉर्टकट रास्ता अपनाया था और इसी शॉर्टकट रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हुई थी। इस रास्ते से बहुत कम लोग गुजरते थे। वो खैरियत से मरियम के घर पहुंच गई। हवेली के अंदर दाखिल होने ही लगी थी कि किसी से टकराते टकराते बची। वो दुराब खान था, मरियम का बड़ा भाई। आप ठीक तो हैं? वो परेशानी से इसकी आंखों में देखते हुए बोला। यस, आई एम फाइन, उसने दो टोक अंदाज में जवाब दिया। इससे पहले कि वो दोबारा से अंदर जाती, अपने नाम की पुकार सुनकर रुक गई। मोहतरमा, मैंने आपसे आपकी पेंटिंग के बारे में सवाल किया था। वो सेल के लिए नहीं है। आप जितने चाहें मैं आपको पैसे देने को तैयार हूं। माजरत करती हूं मोहतरम, मैं अपने फन को पैसों के एवज नहीं बेचती। आप वो पेंटिंग मुझे गिफ्ट भी तो कर सकती हैं। मुझे नहीं लगता कि हम दोनों के ताल्लुकात इतने अच्छे हैं कि मैं आपको वो पेंटिंग गिफ्ट कर दूं। मैं आपकी सहेली का भाई हूं। तो इसको मुंह तोड़ जवाब देना चाहती थी कि मरियम की पुरजोश आवाज सुनकर उसकी तरफ मुतवज्जो हो गई और उसके गले लग गई। यार कसम से मुझे लग रहा था तुम नहीं आओगी। अगर तुम मुझे पहले ही बता देती तो मैं तुम्हारे लिए वो स्पेशल पेस्ट्रीज रख लेती। दुराब उस वक्त तक इसको घूरता रहा जब तक कि वो उसकी नजरों से ओझल ना हो गई। उसे वो छोटी सी लड़की अपने दिल के बहुत करीब मालूम होती थी। वो ये बात भी जानता था कि सफ़ा उसको नापसंद करती है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि सफ़ा को उसकी हरकतें पसंद नहीं थी। दुराब एक अयाश तबीयत का मालिक शख्स था। अपनी मनमानी करता था, दूसरों को तकलीफ पहुंचाकर अपनी अना को तस्कीन पहुंचाता, और सफ़ा को इस तरह के मर्दों से शदीद नफरत थी। एक बार सफ़ा ने उसको कुछ लड़कों के साथ लड़ते हुए देखा था। उस दिन के बाद सफ़ा उससे खिंची खिंची रहने लगी, जबकि पहले उसकी दुराब के साथ काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। वो सब एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। दुराब और ज़ियान उन लोगों से सीनियर्स थे, जबकि सफ़ा और मरियम एक ही क्लास में थे। यार मैंने तो तुम्हें बताया ही नहीं आज मेरे साथ क्या सीन हुआ। सफ़ा ये कहकर उसे पुरजोश अंदाज में ज़ियान का वाक़या सुनाने लगी कि वो कैसे एकदम से वहाँ पर पहुँचा और उसने गाड़ी ठीक कर दी, मगर कुछ भी कहने सुने बगैर वहाँ से चला गया। मुझे तो लग रहा है ज़ियान ने सब कुछ जानबूझकर किया है, मरियम ने उसके इल्म में इजाफा करते हुए कहा। एक तो तुम हर बात में शक करने लगती हो। उसको कैसे पता कि मैं कहाँ जा रही थी? ये भी तो हो सकता है कि वो अपने किसी अहम काम के सिलसिले में जा रहा हो और उसको जल्दी वहां पर पहुंचना हो, इसलिए उसने भी वो रास्ता इख्तियार किया हो। तुम मानो या ना मानो सफ़ा बेगम, मगर वो इंसान मुझे तुम में दिलचस्पी लेता मालूम होता है। ये तुम्हारी गलत फहमी है, और अगर ऐसा कुछ है भी तो मुझे उस इंसान की ज़ात में कोई दिलचस्पी नहीं, मगर आपके बाबा को उनकी ज़ात में काफ़ी दिलचस्पी है। वो उसे पुरसकून अंदाज में देखते बोली। अपनी बातों से वो उसको काफ़ी ज़्यादा चिढ़ा चुकी थी। अगर तुमने मुझे यही बातें करने के लिए बुलाया है तो बता दो, मैं वापस जा रही हूँ। अरे अरे, नाराज़ क्यों हो रही हो? मैं तो बस तुमसे यूं ही मजाक कर रही थी। अगले ही दिन यूनिवर्सिटी में एक बहुत बड़ा इवेंट था। उन लोगों ने फैसला किया था वो छुट्टी करेंगे, मगर रात के वक्त ही यूनिवर्सिटी के ग्रुप में HOD साहब का मैसेज आ गया कि जो भी स्टूडेंट इस इवेंट में शरीक नहीं होगा उसकी प्रीवियस सारी अटेंडेंस कैंसिल कर दी जाएगी और उसको एग्जाम में बैठने की भी इजाज़त नहीं दी जाएगी। वो इवेंट यूनिवर्सिटी का अपना अरेंज किया हुआ था, इसलिए वहाँ पर सबकी मौजूदगी लाजमी थी। सुबह अपने घर जाने के बजाय वो यूनिवर्सिटी चली गई। अपने बाबा को कॉल करके उसने इन्फॉर्म कर दिया था। वो इस इवेंट में मुसलसल अपने चेहरे पर किसी की नज़रों की तपिश महसूस कर रही थी। एक बार जब उसने निगाहें फेर कर देखा तो वहाँ पर ज़ियान खानज़ादा था, जो कि हर चीज़ से मुकम्मल तौर पर अनजान पुरसकून अंदाज में इसे यूं देख रहा था जैसे इससे ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट काम ही नहीं। मैं इस घटिया इंसान की आंखें निकाल दूंगी, उसने अपने पहलू में बैठी मरियम को चुटकी करते कहा तो वो दर्द से करा उठी। मुझे क्यों मार रही हो?
जाकर उस इंसान से पूछो कि उसे क्या मसला है। वो इंसान नहीं, हैवान है, एक नंबर का फजूल इंसान। दिल ही दिल में वो उसको गालियों से नवाजने लगी। यार, मैं तुम्हें इतनी देर से तलाश कर रहा हूं और तुम यहां बैठी हुई हो। शहरयार वहां पर आया तो वो इसको देखकर मुस्कुरा दी। आई एम रियली सॉरी यार, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। मैंने तुम्हारे मोबाइल पर सैकड़ों के हिसाब से मैसेज किए, ना तो तुम मेरे मैसेज देख रही हो और ना ही मेरी कॉल्स उठा रही हो। क्या यही मेरी दोस्ती की अहमियत है? मरियम उसके पहलू में खड़े शहरयार को कीनातोज नजरों से देख रही थी। उसको वो इंसान एक आंख नहीं भाता था, वो इसे मशकूक लगता था। वो अक्सर उसे भी शहरयार से दूर रहने का कहती थी, मगर वो मरियम की बातों को नज़रअंदाज कर देती। अगर तुम्हें याद हो तो तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरे साथ लंच पर चलोगी। हाँ, मुझे याद है और मुझे कोई एतराज़ भी नहीं, लेकिन बात यह है कि मैं थोड़ी लेट फ्री होंगी। तकरीबन 3 बजे के करीब मैं यहाँ से निकलूंगी। कोई इशू ही नहीं, तुम जब भी फ्री हो बस मुझे एक मैसेज कर देना, मैं तुम्हें पिक करने आ जाऊंगा। मुस्कुराते हुए उसे तसल्ली देकर वो वहां से जा चुका था। मरियम हैरत से आंखें फैलाए देखने लगी। क्या तुम इसके साथ लंच पर जा रही हो? हाँ यार, काफ़ी टाइम से मुझे कह रहा है। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? क्या कोई और ऐसा करेगा तो तुम उसके साथ भी मुंह उठाकर चली जाओगी? मुझे बताओ कि उसमें इशू ही क्या है? इशू ये है कि सारी यूनिवर्सिटी ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानती है। शहरयार तुमसे शदीद नफरत करता है। तुमने उस पर हाथ उठाया था और वो उसी चीज़ का बदला लेने के लिए तुम्हारे करीब होने की कोशिश कर रहा है। मुझे डर है वो तुम्हें नुकसान ना पहुंचा दे। यार, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं जानती हूँ वो मेरे साथ बहुत सिंसियर है और उस दिन जो कुछ भी हुआ था वो एक गलत फहमी थी। उसने मुझसे माफ़ी मांग ली थी और मैं भी उसको माफ़ कर चुकी हूँ। मैंने अपने बाबा को भी इसके बारे में बताया है। मेरे बाबा पर्सनली इसके बाबा को जानते हैं और वैसे भी हम सिर्फ लंच करने जा रहे हैं। क्या तुम उसकी गाड़ी में जा रही हो या अपनी गाड़ी में? ऑफ कोर्स मैं उसी की गाड़ी में जाऊंगी। मेरे पास अपनी गाड़ी कहाँ से आ गई? वो तो घर में खड़ी है और सुबह मैं तुम्हारे साथ आई थी। वो अब की बात चिढ़ते हुए बोली। वो अपनी दोस्त की बातों से बहुत खाइफ हो चुकी थी। अपनी लोकेशन ऑन रखना, कुछ भी हो मुझे फौरन इन्फॉर्म करना है। तुम तो ऐसे डर रही हो जैसे मैं किसी बहुत बड़े महाज पर जा रही हूँ। मरियम ने तासुफ भरे अंदाज में सफ़ा को देखा, जिसको समझाना दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम था। वो जैसे ही यूनिवर्सिटी से बाहर निकली, उसके मोबाइल पर एक अनजाने नंबर से मैसेज आया। वो इंसान तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है। ये देखकर वो खिलकर मुस्कुराई। इसको हंसी भी आ रही थी। इसको लग रहा था ये सब कुछ मरियम कर रही है, वो इसको डराना चाहती है। इसने वो मैसेज डिलीट किया और मोबाइल दोबारा से अपने बैग में डाल लिया। उसके मोबाइल का डेटा भी ऑफ था और लोकेशन भी ऑफ थी। वो शहरयार पर अंधा यकीन कर रही थी। वो उसकी गाड़ी में उसके पहलू में जाकर बैठी ही थी कि शहरयार अजीब से अंदाज में मुस्कुरा दिया। फाइनली वो दिन आ ही गया। तुम सोच भी नहीं सकती कि मैंने इस दिन का कितनी बेसब्री से इंतजार किया था और आज मुझे मेरे सब्र का फल मिलने वाला है। किस तरह की बातें कर रही हो तुम? वो उसकी बात हवा में उड़ाते बोली। अच्छा मुझे बताओ, हम कहाँ पर जा रहे हैं? हम यहाँ से 20 किलोमीटर दूर जा रहे हैं। इतनी दूर क्यों? एक नया रेस्टोरेंट खुला है, आज उसकी ओपनिंग है। वो मेरे दोस्त का रेस्टोरेंट है, हम बहुत एंजॉय करेंगे। वो उसकी बात सुनकर गाड़ी में गाने लगा चुका था, जबकि वो थोड़ी सी शेषोपंच में मुब्तला हो गई। मरियम की बातें उसके जहन में घूमने लगी थी। एक लम्हे के लिए उसके दिल में आया वो मरियम को मैसेज कर दे, मगर फिर ये सोचकर मोबाइल बैग से ना निकाला कि कहीं मरियम परेशान ना हो जाए। वो इसकी ओवर रिएक्शन से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ थी। वो इसे अपने फार्म हाउस में लेकर आ गया था। तुम मुझे कहाँ ले आए? ये क्या बदतमीजी है? तुम निकलो, मैं तुम्हें बताता हूँ। वो गुस्से से बोला और उसका बाजू पकड़कर उसे खींचते हुए फार्म हाउस ले जाने लगा। वो खुद को छुड़वाने की नाकाम कोशिश कर रही थी, मगर शहरयार की गिरफ्त बहुत मजबूत थी। आज मैं तुम्हारे साथ कुछ वीडियोस बनाऊंगा जिसमें तुम मेरे बहुत करीब मौजूद होगी और सारी दुनिया को ये बात बताओगी कि तुम अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हो। तुम मुझसे बेतहाशा मोहब्बत करती हो, मुझसे शादी करना चाहती हो। तुम पागल हो गए हो? मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। तो फिर मेरे पास और भी बहुत तरीके मौजूद हैं।
جیسے ہی اس نے لاؤنج کا دروازہ کھولا، سامنے کھڑی شخصیت کو دیکھ کر اسے اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ سامنے زیان خان کھڑا تھا۔ یار شہریار، میں کافی دیر سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں، ہمیں اس پروجیکٹ پر کام کرنا تھا، وہ سرسری لہجے میں بولا اور پھر ایک نگاہ اس کے پہلو میں کھڑی صفا پر ڈالی۔ ہم بعد میں اس پروجیکٹ پر ڈسکشن کریں گے، تم ابھی یہاں سے جاؤ، میں تھوڑا مصروف ہوں۔ اس نے ہکلاتے ہوئے جواب دیا تھا کہ صفا چلاتے ہوئے کہنے لگی، پلیز مجھے چھڑاؤ، مجھے اس جنگلی انسان سے بچاؤ، یہ مجھے زبردستی یہاں لایا ہے۔ اس نے اس کے بازو پر زور سے کاٹا اور بھاگتی ہوئی زیان خان کے پیچھے جا کر چھپ گئی۔ دیکھو زیان، تم یہاں سے چلے جاؤ اور اس لڑکی کو میرے حوالے کر دو۔ زیان مطمئن انداز میں بازو لپیٹے کھڑا تھا، یوں جیسے اس پر شہریار کی بات کا کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا۔ میں تمہیں آخری وارننگ دیتا ہوں شہریار، ابھی اور اسی وقت یہاں سے دفع ہو جاؤ، ورنہ تم پر ہراسمنٹ کے ساتھ ساتھ کڈنیپنگ کا کیس بھی کروا دوں گا۔ تم مجھے یہاں سے جانے کو نہیں کہہ سکتے، یہ میرا فارم ہاؤس ہے۔ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی یہ ہو گئی جو میں نے تمہیں اس فارم ہاؤس کی چابی دے دی تھی۔ اگر مجھے اندازہ ہوتا کہ تم میری پیٹھ پر وار کرو گے تو میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں میں کبھی تمہیں اپنے ساتھ شامل نہ کرتا۔ شہریار نفرت سے چور لہجے میں بولا تو زیان دھیمے سے انداز میں مسکرانے لگا۔ خیر، جو کچھ بھی ہوا اچھے کے لیے ہوا۔ وہ صفا کو آگے چلنے کا اشارہ کرنے لگا۔ اس چھوٹی سی لڑکی کی حالت ایسی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ اس نے خوف سے زیان کی بازو پکڑ رکھی تھی۔ پلیز مجھے بچا لو، وہ اپنے دھڑکتے ہوئے دل کو سنبھالتے ہوئے بولی۔ شہریار زیان سے کافی حد تک خوف زدہ ہوتا تھا کیونکہ وہ اس کے اثر و رسوخ سے واقف تھا، اسی وجہ سے اس نے زیان کو وہاں سے جانے کی اجازت دے دی تھی۔ وہاں سے نکلتے ہی زیان نے اپنے گارڈز کو کال کی کہ وہ شہریار کو اس کے گھر سے اٹھوا لے اور کچھ عرصے کے لیے اس کو بیسمنٹ میں بند کر دے تاکہ اس کا دماغ ٹھکانے پر واپس آ جائے۔ اب وہ اس لڑکی کی طرف متوجہ ہوا۔ سب سے پہلے تو میں تمہارے گھر تمہیں چھوڑ کر تمہارے بابا کو تمہاری اس حرکت کے بارے میں بتاؤں گا۔ میرے بابا کبھی تم پر یقین نہیں کریں گے، وہ لاپرواہی کا اظہار کرتے بولی۔ اب اس کے چہرے سے خوف کے تاثرات ختم ہو گئے تھے، وہ جان چکی تھی کہ اب وہ سیف ہے۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے تم مجھے سٹاک کر رہے ہو، وہ پرجوش انداز میں اس کے چہرے کی طرف دیکھتے بولی۔ ذرا سوچو نا، پہلے بھی ایک بار جب ویران سڑک پر میری گاڑی خراب ہو گئی تھی تو تم اس روڈ پر بھی پہنچ گئے تھے، اور آج جب میں اس انسان کی چال میں پھنس گئی تو تم نے میری مدد کر دی۔ دنیا میں اس کے علاوہ بھی اور بہت زیادہ ضروری کام ہیں، اور خدا کا شکر ہے کہ میں ان ضروری کام میں دلچسپی لینا پسند کرتا ہوں۔ جہاں تک تمہارا سوال ہے تو مجھے تم جیسی لڑکیوں کی ذات میں ذرا بھی دلچسپی نہیں، جن کو اپنی عزت کا کوئی خیال ہی نہیں ہوتا۔ تم جیسی لڑکیاں جان بوجھ کر ایسے مواقع پیدا کرتی ہیں جیسے تم لوگوں کی عزت پر آنچ آ سکتی ہے۔ نہ تو تم لوگوں کو اپنے گھروں کی عزت کی فکر ہے اور نہ ہی اپنی ریپوٹیشن کا خیال ہوتا ہے۔ ایکسکیوز می، تمہیں اندازہ ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے بہت اچھے سے اندازہ ہے، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، اور مجھے اپنے الفاظ پر شرمندگی بھی نہیں ہو رہی۔ آج تو میں نے تمہیں اس گھٹیا انسان سے بچا لیا، لیکن دوبارہ کبھی مجھ سے یہ امید نہ رکھنا۔ مجھے لگتا ہے مجھے تھوڑی دیر کے لیے تمہیں اس کے پاس ہی چھوڑ دینا چاہیے تھا تاکہ تمہارا دماغ ٹھکانے پر آ جاتا۔ یہ سن کر صفا کا چہرہ شرم کے مارے لال ہو گیا۔ میں بابا سے تمہاری شکایت لگاؤں گی، تم بہت بدتمیز انسان ہو۔ اس سے پہلے تمہیں تمہارے بابا جان کو تمہاری اس حرکت کے بارے میں بتاؤں گا۔ وہ تم پر اس وجہ سے یقین نہیں کرتے کہ جو دل میں آئے وہ کرنا شروع کر دو۔ میں انہیں کہوں گا کہ اپنی بے وقوف بیٹی پر حد سے زیادہ اعتماد کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ سن کر وہ بہت پریشان ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے بابا زیان خان کو پسند کرتے ہیں، وہ ان کا پسندیدہ لڑکا تھا۔ وہ اکثر اس کے سامنے زیان کی باتیں کرتے رہتے تھے جسے وہ ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیتی تھی، اور اگر زیان انہیں اس حرکت کے بارے میں بتا دیتا تو وہ یقیناً سچ مان لیتے۔ انہوں نے بچپن سے لے کر اس کو اب تک یہی نصیحت کی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے ایسا کوئی کام مت کرنا جس سے میری عزت پر آنچ آئے۔ میں تم پر بھروسہ کرتا ہوں، میرا یہ بھروسہ کبھی مت توڑنا۔ آج جو کچھ شہریار اس کے ساتھ کرنے والا تھا، یہ سوچ کر ہی اس کا وجود خوف سے لرزنے لگا تھا۔ میں تم سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے جو کچھ بھی کہا ہے میں اس پر بہت زیادہ شرمندہ ہوں۔
तुम जो कहोगे, मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। जैसे ही ठीक वक्त आएगा मैं तुम्हारे बाप को तुम्हारी इस हरकत के बारे में बता दूंगा। फिलहाल खामोश हो जाओ, मेरे सर में दर्द है, मुझे परेशान मत करो। ये कहकर वो ड्राइविंग की तरफ मुतवज्जो हो गया। तुम अपनी आंखों से ये सन ग्लासेस क्यों नहीं हटाते? तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, अपने काम से काम रखो। मैं तो बस जनरल नॉलेज के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन कर रही थी। अगर तुम बताने में इंटरेस्टेड नहीं हो तो नो प्रॉब्लम। इस तरह से ओवर रिएक्ट करने की क्या जरूरत है? वो मुंह बनाते हुए बोली। जियान ने उसे आंखें तिरछी करके देखा था। इस लड़की की शरारतों को लापरवाहियों की वजह से वो दिन ब दिन बहुत तंग आता जा रहा था। जियान खान के घर पर पार्टी थी। वो वहां पर नहीं जाना चाहती थी, मगर अपने बाबा के कहने पर मजबूर हो गई। वो अपने बाबा की इकलौती बेटी थी। इसकी मामा इसके बचपन में ही इंतकाल कर गई थी। माँ के इंतकाल के बाद इसके बाप ने दूसरी शादी नहीं की, बल्कि खुद ही इसकी माँ और बाप दोनों बनकर इसकी परवरिश की। वो अपने कमरे में खड़ी ड्रेसेस चूज कर रही थी जब एक मुलाजमा दरवाजे पर दस्तक देती कमरे के अंदर दाखिल हुई। ये लीजिए, ये आपके लिए जियान साहब की मामा ने भेजा है। उन्होंने क्यों भिजवाया? पता नहीं, मुझे साहब ने कहा मैं आपको दे दूं। आज रात पार्टी में आपने यही पहनना है। इसके माथे पर बल पड़ गए। वो ड्रेस उठाकर अपने बाबा के कमरे में गई। बाबा, ये सब क्या है? उसने अपने लहजे को नॉर्मल रखने की हर मुमकिन कोशिश की थी, मगर उसके बावजूद उसका लहजा तल्ख हो गया था। क्या हो गया? ड्रेस है, देखो कितना प्यारा है। फौजिया साहिबा ने खास तुम्हारे लिए भिजवाया है। उनको इस सब की क्या जरूरत थी? मेरे पास ड्रेसेस की कमी नहीं है, उसने झंझलाते हुए कहा। बेटा, इसमें इतना ओवर रिएक्ट करने वाली कौन सी बात है? अगर उन्होंने हम तुम्हारे लिए भिजवाया है तो तुम सिंपली ये ड्रेस पहन लो। तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? वो आंखें छोटी छोटी करके अपने बाबा के चेहरे को देखने लगी तो उन्होंने बेसाख्ता उसे अपनी निगाहें चुराई थी। बाबा जान, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि दाल में कुछ काला है? पूरी दाल ही काली है। उन्होंने ये बात धीमे लहजे में कही थी। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। कुछ भी नहीं, जाओ जाकर तैयारी करो, हम पहले ही लेट हो चुके हैं। वो पांव पर तख्ती दोबारा से अपने कमरे में दाखिल हुई। उसने ब्लैक कलर का वो सूट पहन लिया। हल्का फुल्का मेकअप करने के बाद जब उसने एक नज़र खुद को शीशे में देखा तो बेसाख्ता मुस्कुरा दी। वो बहुत हसीन थी, उसमें कोई शक नहीं था। वो किसी भी मर्द का ख्वाब हो सकती थी, मगर जिस तरह का इंसान उसे चाहिए था, जिस तरह की उसकी डिमांड थी, उसको लगता था वो कंवारी ही मर जाएगी। ये ड्रेस उसके लिए जियान ने अपनी पसंद से लिया था। दो खानदानों में अंदर ही अंदर सारी बातें तय हो चुकी थीं। जियान की मर्जी से ही ये सब कुछ तय हो रहा था, मगर वो इस लड़की पर शो नहीं करना चाहता था। इकराम साहब ने अपनी बेटी का हाथ जियान के लिए दे दिया था, मगर वो उसे बताने से डर रहे थे। वो जानते थे कि कुछ फजूल बुनियादों पर उनकी बेटी जियान को पसंद नहीं करती। वो चाहते थे कि पहले उसकी गलतफहमी दूर कर दी जाए। जब वो पार्टी में दाखिल हुई तो सब लोगों की नजरें उसकी जानिब उठी। जियान ने बेचैनी से अपना पहलू बदला और गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच ली। वो अपनी मोहब्बत पर किसी की नज़र बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो जैसे ही अंदर दाखिल हुई, जियान की नज़रों की तपिश महसूस करते हुए थोड़ी सी बेचैन हो गई। वो साइड पर पड़े एक टेबल पर बैठ गई थी। वो वहां पर बैठकर जियान की हरकतों को नोट कर रही थी। उसने फैसला किया था, चाहे कुछ भी हो जाए, अब वो जियान की कमज़ोरी को ढूंढेगी, ताकि बाद में उसकी कमज़ोरी को इस्तेमाल करके वो उसे अपने काबू में कर ले। वो चाहती थी कि वो उसके साथ डील कर ले, ताकि वो इसकी इस हरकत के बारे में उसके बाबा को कुछ भी ना बताए। वो काफ़ी देर तक अपने दोस्तों के ग्रुप में खड़ा उनसे बातें करता रहा और फिर अचानक ही उसका मोबाइल बजने लगा तो वो घर के पिछले हिस्से में चला गया। न जाने सफ़ा के दिल में क्या आया, वो भी छोटे छोटे कदम उठाती उसकी जानिब चली गई। अभी उसने पिछले हिस्से में कदम रखा ही था कि उसे जियान की रोबदार आवाज़ सुनाई दी। मैंने तुम लोगों को क्या समझाया था कि जैसे ही वो इंसान तुम लोगों के हाथ लगे उसे ठिकाने लगा दो। तुम लोगों ने उसे जिंदा क्यों छोड़ा? यही वजह है कि वो तुम लोगों के चुंगल से भाग गया। अब मुझे वो इंसान हर हाल में चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनकर सफ़ा का वजूद हौले हौले लरसने लगा था। वो किसको ठिकाने लगाने की बात कर रहा था? जब उसने कदमों की चाप सुनी
तो वो भागती हुई दोबारा से रश वाली जगह पर चली गई। लेकिन अब उसके चेहरे के तासुरात बदले हुए थे, उसकी रंगत ओढ़ी हुई थी और उसका वजूद भी हौले हौले लरज रहा था। हेलो लिटिल गर्ल, कैसी हो तुम? जानी पहचानी मर्दाना आवाज सुनकर उसने अपनी निगाहें उठाई तो वो एक लम्हे के लिए चौंक गई। आज उसने अपनी आंखों से सनग्लासेस हटाए हुए थे। ज़ियान की नीली आंखें सहर अंगेज थीं और किसी को भी अपने सहर में जकड़ने का हुनर रखती थी। फाइनली आपने मेरी पसंद का ड्रेस पहन ही लिया। उसकी इस बात पर वो सवालिया अंदाज में उसकी तरफ देखने लगी। क्या मतलब है आपकी इस बात का? अरे आपको बताया नहीं, आज इस फंक्शन पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होने वाली है। ये कहकर वो पुरशौक अंदाज में इसके चेहरे की तरफ देखने लगा। किस तरह की अनाउंसमेंट? थोड़ी ही देर में आपको पता चल जाएगा। ये कहकर वो वहां से उठकर चला गया और फिर जो अनाउंसमेंट हुई उसको सुनकर इसे अपनी जान अपने वजूद से निकलती महसूस हुई। उसके बाबा ने ज़ियान के साथ इसकी मंगनी तय कर दी थी। उसने सब लोगों के सामने इस मंगनी से इनकार कर दिया। अकराम साहब ने बेयकीनी से अपनी बेटी को देखा। शायद उन्हें अपनी बेटी से ये उम्मीद नहीं थी। उनको अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ। जब वो घर वापस आए तो वो उसे निगाहें चुरा रहे थे, उससे कोई भी बात नहीं कर रहे थे और वो खुद भी बहुत ज़्यादा शर्मिंदा थी। रात के वक्त वो उनके कमरे में गई और फिर उनके कदमों में बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। अकराम साहब एकदम ही बहुत परेशान हो गए। उन्होंने उसे अपने कदमों से उठाया और सीने से लगाते हुए कहा, मेरी बच्ची रोना बंद करो, तुम जानती हो कि तुम्हारे आंसू मुझे तकलीफ देते हैं। बाबा मुझे माफ़ कर दे, मगर मैं क्या करती, मुझे वो इंसान बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे वो एक आंख नहीं भाता। जब मैं उसको देखती हूँ तो मेरा दिमाग गुस्से से घूमने लगता है और मुझे ये भी पता चला है कि वो एक मुजरिम है। मैंने आज ही उसे किसी से फ़ोन पर बात करते सुना था। वो किसी को ठिकाने लगाने की बात कर रहा था। ये कहकर उसने फिर से रोना शुरू कर दिया। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। उन्होंने अपनी बेटी को समझाने की कोशिश की, मगर वो एक ही बात पर डटी हुई थी कि मैं उस इंसान से शादी नहीं कर सकती। मुझे उससे नफरत है, मुझे उस इंसान से खौफ आता है। उस दिन उससे जो गलती हुई थी वो भी उसने अपने बाप को बता दी थी और इसके बाप ने इसको माफ़ कर दिया था। वो इस मामले को जितना बड़ा समझ रही थी, ये मामला इतना बड़ा नहीं था। दूसरी तरफ ज़ियान खान का गुस्से के मारे बुरा हाल था। वो कमरे की सारी चीज़ों को ज़मीन पर फेंक चुका था और खुद बालकनी में जाकर खड़ा हो गया। उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो मुझसे शादी से इनकार करे? उसने हलक के बल चिल्लाते हुए कहा। कमरे से आने वाली आवाज़ों को सुनकर तमाम मुलाजिम बहुत परेशान थे। यहाँ तक कि उसके बाबा में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने बेटे के पास जाकर उसे सवाल कर सकते या फिर उसको तसल्ली देते। उस लड़की ने जो कुछ किया है उसका हिसाब तो उसे देना होगा, उसने दिल ही दिल में सफ़ा से मुखातिब होते कहा। दूसरी तरफ सफ़ा उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे करने के लिए निकल पड़ी। वो नहीं जानती थी कि वो खुद को कितनी बड़ी मुश्किल में फंसाने जा रही है। यूनिवर्सिटी में भी वो उसके आगे पीछे घूमती थी। मरियम ने जब ये बात नोट की तो वो मुंह बनाते कहने लगी, अगर तुम्हें उस इंसान में इतनी ही दिलचस्पी थी तो तुम उससे शादी कर लेती। अब उसके पीछे भागने का क्या फायदा? अगर इंसान की शक्ल अच्छी ना हो तो बात ही अच्छी कर लेनी चाहिए। मैं उसके पीछे इसलिए नहीं भाग रही कि मुझे उससे तूफानी किस्म का इश्क हो गया है या फिर मुझे उससे धुआंधार किस्म की मोहब्बत है। मैं बस उसकी असलियत सारी दुनिया के सामने लाना चाहती हूँ। वैसे तुम एक बहुत जालिम लड़की हो। पहले तुमने मेरे भाई पर जुल्म किया था। मरियम बात कहते कहते खामोश हो गई। अच्छा चलो ठीक है, तुम उनको पसंद नहीं करती थी इसीलिए तुमने उनके रिश्ते से इनकार कर दिया। लेकिन यार, ज़ियान तो एक बिल्कुल परफेक्ट इंसान है। तुम कुछ दिन पहले तक मेरे साथ मिलकर उसकी बुराइयां करती, अब तुम उसकी तारीफें कर रही हो। मुझे बताओ, मेरे बाबा ने तुम्हें कितने पैसे दिए हैं? तुम एक फजूल लड़की हो, तुमसे तो कुछ कहना ही बेकार है। ये कहकर मरियम नाराज होकर वहां से चली गई। उस दिन उसने ज़ियान की गाड़ी का पीछा किया था, मगर ये क्या, गाड़ी एक वीरान रास्ते की तरफ चलने लगी थी। वहां पर और कोई मौजूद नहीं था, सिर्फ 2 गाड़ियां थी जो आगे पीछे जा रही थी। ज़ियान ने एकदम ही अपनी गाड़ी को ब्रेक लगाई। उसकी गाड़ी ज़ियान की गाड़ी से लगते लगते बची थी। वो अपनी गाड़ी से नीचे उतरा और इसकी गाड़ी में झांकते हुए कहने लगा,
मेरी बात कान खोल कर सुन लो, बाज आ जाओ वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। इसने अपना सांस रोका हुआ था और सहमी हुई नजरों से ज़ियान के चेहरे को देख रही थी। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो इतनी आसानी से पकड़ी जाएगी। तुम क्या समझती हो? मुझे तुम्हारी हरकतों के बारे में कोई इल्म नहीं। मुझे अच्छी तरह पता है तुम्हारे जहन में क्या चल रहा है। मैं तुम्हें सिर्फ एक मशवरा देना पसंद करूंगा कि अपने दिमाग से खन्नास बाहर निकाल दो, क्योंकि जिस दिन तुम मेरे हाथ लग गई उस दिन तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। तुम्हें मैं आखिरी वार्निंग दे रहा हूं। उंगली उठाकर धमकी देता वो वहां से चला गया। काफी देर तक वो अपनी जगह पर साकित बैठी रही। वो कहाँ इन धमकियों से डरने वालों में से थी या फिर बाज आने वालों में से थी। उसकी भी जिद थी कि वो हर हाल में इसको पकड़ कर रहेगी। उस दिन मौसम बहुत खराब था, शदीद गर्मी थी। वो क्लास लेकर जैसे ही बाहर निकले तो उसे गैर मामूली सी हलचल महसूस हुई। उसने इन सबको अपना वहम समझा और उन चीज़ों को नज़रअंदाज करते अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गई। उसे आज मॉल जाना था और वहाँ से अपनी कुछ ज़रूरत की चीज़ें खरीदनी थी। इसके अलावा उसे बाबा के लिए भी शॉपिंग करनी थी, क्योंकि उनकी बर्थडे नज़दीक आ रही थी। वो वहाँ पर अपने लिए कुछ चीज़ें खरीद रही थी कि उसे काले लिबास में कुछ आदमी खड़े नजर आए। उन्होंने ज़ियान के गार्ड जैसे कपड़े पहने हुए थे। इसको शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हुआ। ना चाहते भी वो उनका पीछा करने लगी। वो लोग पार्किंग एरिया में पहुंचे। वहां पर खड़े ज़ियान को देखकर इसे अपने वजूद से जान निकलती महसूस हुई, क्योंकि ज़ियान के हाथ में कुछ हथियार थे और उसके बदले उसने अपनी पॉकेट में से पैसे निकालकर सामने खड़े शख्स के हवाले किए थे। ज़ियान नहीं जानता था कि वो लड़की वहां पर खड़ी इसकी हरकतें देख चुकी है। उसकी निगाह अचानक उठी और फिर सामने शख्सियत को खड़े देखकर उसके लबों पर एक पुरस्रार मुस्कुराहट फैल गई। उसने वहां से भागने की कोशिश की थी, मगर ज़ियान का गार्ड उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक ड्रॉप कर देता हूं, उसने दो टोक अंदाज में कहा। वो उसको इनकार कर देना चाहती थी, मगर खुद को बहुत बेबस महसूस कर रही थी। जानती थी कि जब तक वो इजाज़त नहीं देगा तब तक वो यहाँ से 1 इंच नहीं हिल सकती। वो उसकी गाड़ी में आकर उसके बराबर में बैठ गई। तुमने अभी क्या देखा? वो उसकी आंखों में देखते सवाल करने लगा। मैंने कुछ नहीं देखा, उसने तेजी से नफी में सर हिलाया। अपना मोबाइल मेरे हवाले करो। नहीं, मैं आपको अपना मोबाइल नहीं दूंगी। जो कहा है वो करो। वो हलक के बल धाड़ा तो इसी ने अपना मोबाइल ज़ियान के हाथ में दे दिया। वो अब उसकी गैलरी ओपन कर रहा था। और लिटिल गर्ल, मेरी सोच से भी ज्यादा चालाक हो। यकीनन तुम्हें मेरे खिलाफ सबूत मिल गए, मगर क्या तुम्हें लगता है ये सबूत मैं तुम्हारे हवाले करूंगा? वो अजीब से अंदाज में मुस्कुराते हुए बोला। प्लीज मुझे यहां से जाने दो। मैं तुमसे वादा करती हूं मैं इस बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। वो हकलाते हुए उसे अब सच में इस इंसान से खौफ आ रहा था, क्योंकि ये इंसान उसकी सोच से भी ज्यादा खतरनाक था। ठीक है, मैं तुम्हें जाने की इजाजत दे दूंगा, मगर इतनी आसानी से नहीं। तुम अच्छे तरीके से जानती हो कि मैं जो दिल में आए वो कर सकता हूं। अगर तुमने इस बारे में किसी को भी बताने की कोशिश की तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे बाप को भी जान से मार दूंगा। वो इसको डरा रहा था और इसके चेहरे के उड़ते रंगों को देखकर लुत्फानंदोज हो रहा था। मैं वादा करती हूं किसी को नहीं बताऊंगी, मगर मुझे गारंटी चाहिए। किस तरह की गारंटी? तुम्हें मुझसे निकाह करना होगा। मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं तुमसे पूछ नहीं रहा बल्कि तुम्हें बता रहा हूं। भरी महफिल में जो तुमने मुझे जलील किया था उस चीज का इंतकाम भी तो लेना है मैंने। इतनी आसानी से तुम्हें अपने हाथों से निकलने की इजाजत नहीं दे सकता। उसने बहुत वावेला मचाया, मगर ज़ियान ने अगले ही लम्हे उसकी नाक पर रुमाल रखकर उसे बेहोश कर दिया। जब उसे दोबारा होश आया तो वो कुर्सी के साथ बंधी हुई थी। सामने ही ज़ियान बैठा था। मौलवी भी आ चुका था और उसके कुछ दोस्त भी मौजूद थे। निकाह शुरू हो गया। ज़ियान ने गन पॉइंट पर उससे निकाह किया। दस्तखत के वक्त उसने इस छोटी सी लड़की के हाथ खोल दिए थे। वो अब इसकी बीवी बन चुकी थी। प्लीज अब मुझे यहां से जाने दो। अरे, जब एंजॉय करने की बारी आई तब तो मुझे आजाद करने को बोल रही हो। ये तो बहुत अनफेयर है। वो जानबूझकर इसे तंग कर रहा था। ये सुनकर वो फूट फूट कर रोने लगी। प्लीज, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। मेरे बाबा खुद परेशान हो रहे हैं। तुमने जो कुछ करना था वो तुम कर चुके हो। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं।
वो एक कदम उसकी तरफ बढ़ा तो वो तेजी से पीछे की तरफ हटी, दीवार के साथ लगकर खड़ी हो गई। अब तुम्हें पता चला है कि लड़कियों को इस कदर बहादुरी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। वो उसके बालों की लट को अपनी उंगली के गिर्द घुमाते हुए बोला तो वो सहमे हुए अंदाज में तेजी से हाँ में गर्दन हिलाने लगी। लड़कियां डरपोक ही अच्छी लगती हैं। जो लड़कियां हद से ज्यादा बहादुरी का मुजाहरा करती हैं वो तुम्हारी तरह अपने आप को मुश्किल में डाल देती हैं। तुम आजाद हो, ये कहकर उसने कुछ कागजात फाड़ दिए थे और इस छोटी सी लड़की को अपने वजूद से जान निकलती महसूस हुई थी। इसको लग रहा था वो निकाह के कागजात हैं। ये तुम क्या कर रहे हो? सारे सबूत मिटा रहा हूं। प्लीज ऐसा मत करो, मैं जीते जी मर जाऊंगी, उसने चिल्लाते हुए कहा। वो सब कुछ तुम्हें मेरे साथ तमाशे लगाने से पहले सोचना चाहिए था। वो उसे उसके घर के सामने छोड़कर जा चुका था। उसी वक्त अकराम साहब अपनी हवेली से बाहर निकल रहे थे। उसको जियान के साथ आता देखकर उनको खुशगवार हैरत हुई। जियान 2 दिन पहले ही उनके पास आया था। उसने इनको तसल्ली दी थी कि आप बेफिक्र हो जाएं। मैं आपकी बेटी के दिल में जगह बनाने में कामयाब हो जाऊंगा। मैं हमेशा उसका ख्याल रखूंगा और उसे अपने दिल के बहुत करीब रखूंगा। मैं उसकी हरकत की वजह से नाराज नहीं हूं, ना मुझे उस पर गुस्सा है। वो अभी छोटी है, कम अकल है। वक्त गुजरने के साथ साथ उसे अकल आ ही जाएगी। वो कोई गुंडा मवाली या फिर कोई गैंगस्टर नहीं था, ना ही वो किसी गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्विस था। हकीकत ये थी कि वो एक सीक्रेट एजेंट था और सीनियर ऑफिसर था। 2 साल से वो यूनिवर्सिटी में एक मिशन पर काम कर रहा था। दरअसल वो वहां पर बहुत से ऐसे ग्रुप थे जो गैर कानूनी हथियार फरोख्त करते थे और उसके अलावा ड्रग्स वगैरह का भी बिजनेस था। मासूम लड़कियों को दूसरे मुल्क स्मगल किया जाता और कुछ लड़कियों की तो जिंदगियां ही बर्बाद हो गई थी। वो इस गिरोह को पिछले 2 सालों से तलाश कर रहा था। उसका मिशन सिर्फ एक यूनिवर्सिटी तक महदूद नहीं था, बल्कि इस जैसी बहुत सी यूनिवर्सिटीज ऐसी थी जिसमें इस तरह की सरगर्मियां हो रही थी। जहां तक सफा का सवाल था तो बचपन में ही उसकी जियान के साथ मंगनी कर दी गई थी और वो इस बात से अनजान थी। जब वो पहली बार जियान से मिली थी तो उसकी उखड़ी हुई शख्सियत देखकर वो उससे बदजन हो गई। उसको वो लोग जिनके दिल नरम होते थे उसे वही लोग पसंद थे। सख्त दिल वाले लोगों से उसे शदीद चिढ़ थी। वो चेहरे से बहुत घबराई हुई मालूम हो रही थी। अकराम साहब को इस बारे में पता नहीं था कि उस शख्स ने इनकी बेटी से जबरदस्ती निकाह कर लिया है। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? उन्होंने इसके सर पर हाथ रखते कहा तो वो बमुश्किल मुस्कुराते हुए कहने लगी, बाबा मैं बिल्कुल ठीक हूं, बस थोड़ी सी थक गई हूं, अपने कमरे में जाकर आराम करूंगी। तुम जियान के साथ कहाँ गई थी? बाबा हम लोग डिनर पर गए थे, सॉरी मैंने आपको बताया नहीं। जियान ने उस रात उसको कॉल की थी। वो उसको जानबूझकर डरा धमका रहा था। उसने इसे कहा था कि वो उस निकाह के बारे में कभी किसी को नहीं बताएगा और ना ही उसको छोड़ेगा। वो बहुत ज्यादा परेशान थी। इन्हीं दिनों उसके बाबा की तबीयत भी खराब रहने लगी। उन्होंने इसका रिश्ता अपने दोस्त के बेटे के साथ तय कर दिया। वो उस रात उसी के पास बैठकर उसे बहुत सी बातें करते रहे, मगर उसका ध्यान तो जियान में ही उलझा हुआ था। शादी के दिन उसकी सांस में सांस आई जब उसे पता चला कि उसका निकाह जियान से ही हो रहा है। और तब उस पर यह राज भी आश्कार हुआ था कि जियान एक ऑफिसर था जो इस यूनिवर्सिटी में मिशन कर रहा था। वो किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्विस नहीं था और यह उसके साथ एक छोटा सा खेल खेला गया था जो सब लोगों के मशवरे से था, मगर उस खेल में निकाह शामिल नहीं था। अकराम साहब को जब इस बारे में पता चला तो उन्होंने जियान से नाराजगी का इजहार किया। सफा भी अपने बाबा से नाराज हो चुकी थी। उसने अपने बाबा को साफ अल्फाज में कहा था कि अब आपको मुझसे बात करने की जरूरत नहीं, आपने उन लोगों का साथ दिया। आप सोच भी नहीं सकते कि मैं कितनी टेंशन में रही थी। जब जियान कमरे में दाखिल हुआ तो वो कुशन उठाकर उसको जोर जोर से मारने लगी। एक एक करके उसने वो सारे कुशन पकड़े और साइड सोफे पर आकर उसके करीब चलाया। खबरदार, जो तुमने मेरे करीब आने की कोशिश की। ठीक है, रिलैक्स हो जाओ। तुम बहुत बुरे हो, मैं तुमसे शदीद नफरत करती हूँ, मगर मोहतरमा मैं आपसे बेतहाशा मोहब्बत करता हूँ। तुमने मुझे हकीकत के बारे में बताया क्यों नहीं? अगर तुम्हें सब कुछ बता देता तो तुम्हारा दिमाग कैसे ठिकाने पर आता?
मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैं हमेशा तुमसे नफरत करती रहूंगी। मुझे यकीन है कि मेरी मोहब्बत बहुत जल्द तुम्हारी इस नफरत को दूर कर देगी, ज़ियान ने जज्बात से चूर लहजे में कहा। उसको बेड पर सोने का इशारा करके वो खुद सोफे पर जाकर लेट गया था। वो चाहता था कि वो छोटी सी लड़की कंफर्टेबल रहे। वो उसकी इजाज़त के बगैर उसके करीब नहीं गया। वक्त का काम है गुजरना, और वक्त तेजी से गुजरता चला जा रहा था। इस दौरान ज़ियान उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखता, उसकी छोटी छोटी ज़रूरत को पूरा करता। वो उसे ना तो तल्ख लहजे में बात करता था और ना ही उस पर रोब जमाता था। वो बिल्कुल ही वैसा इंसान बन गया था जैसे सफ़ा चाहती थी। वो अब उसकी ज़ात में दिलचस्पी लेने लगी। उसे वो इंसान अपने दिल के करीब मालूम होने लगा। अपने बाबा को भी वो माफ़ कर चुकी थी। कुछ अरसा गुजरा तो उसके बाबा भी इस हवेली में आ गए। ज़ियान उन्हें अपने पास लेकर आया था क्योंकि वो उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता था। उसकी हरकत पर सफ़ा बहुत ज़्यादा खुश हुई। उसके दिल में ज़ियान की इज्जत मज़ीद बढ़ गई थी। ज़ियान ने अपनी बेलौस मोहब्बत के ज़रिए उसका दिल जीत लिया था। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।